Welcome dear children to your science class, and let's start with class 4 science book Periwinkle, a book of science and life by Coral Publishers. And today we'll do chapter 10, that is our environment. तो आज हम पढ़ेंगे environment के बारे में. तैयार हैं आप सभी पढ़ने के लिए? So here we start with the learning outcomes. डिफाइन एनवायरनमेंट. हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिफाइन करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में. इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है. डिफाइन पोल्यूशन, पोल्यूशन किसे कहते हैं. डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, और अलग अलग तरह के पोल्यूशंस कौन कौन से हैं. डिस्कस द वेज ऑफ प्रिवेंटिंग पोल्यूशंस, और इन पोल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. And here comes the breaking point. We see a lot of things around us. हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हम देखते हैं. Some of them are living and others are non-living. कुछ living things हैं, कुछ non-living things हैं. The things in our surroundings make up our environment. और ये जो चीजें हैं जो हमारे surroundings में हैं, यही सब क्या बनाती हैं, environment बनाती हैं. Plants, animals and humans are living things in our environment. और हमारे environment में जो living things हैं वो क्या क्या हैं? Plants, animals and human beings. Can you name any 4 non-living things in your surroundings? और आपके आसपास, आपके surroundings में कौन कौन से non-living things हैं वो बताइए, वो सोचिए और बताइए. And let's read the chapter first, then we'll come to know about all these things. So here we start with environment. All living and non-living things in our surroundings make our environment. जितने भी living और non-living things हैं हमारे आसपास, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, environment. This consists of air, water, land, plants and animals. और इन सब में क्या क्या चीजें हैं ये, air, water, land, plants and animals. Human beings are also a part of environment. We human beings, हम सभी इस environment के part हैं. All the living and non-living things interact with each other to maintain a balance in the nature. और ये living और non-living things का एक interaction होता है आपस में, जिससे कि nature में जो balance है वो बना रहता है. Balance in nature gets disturbed when either the number of plants gets decreased or the number of animals gets increased. अगर plants के number decrease हो गए, plants कम हो गए या animals बढ़ गए, तो ये जो balance है ये खराब हो जाता है, ये बिगड़ जाता है. Human activities are creating problems in our natural environment. हमारे natural environment में हम human beings, हमारी जो activities हैं वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इस नेचुरल एनवायरनमेंट में. A lot of trees are being cut to clear land for building houses and roads. और ये houses और roads बनाने के लिए कितने ही पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे कि क्लियर लैंड मिले ये सब कंस्ट्रक्ट करने के लिए. और यही कारण है जिससे कि इम्बैलेंस हो रहा है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट. एनवायरमेंटल पोल्यूशन. Addition of harmful substances into the environment is called pollution, and the harmful substances are called pollutants. हमारे environment में जो harmful substances का addition हो रहा है, जो harmful substances इसमें डाले जा रहे हैं, उसके कारण होता है, उसे कहता है pollution. Fine. और ये जो harmful substances हैं, इन्हें कहा जाता है pollutants. For example, smoke is a pollutant that is harmful to our body when breathed with air. हवा के साथ जो धुआं है, स्मोक है, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, और स्मोक जो है, जो धुआं है, वो है pollutant. It is also harmful to other living things, that is plants and animals. ये plants and animals को भी नुकसान पहुंचाता है. हम human beings को तो कैसे नुकसान पहुंचाता है, जब हम breathe करते हैं ये स्मोक मिला हुआ एयर, धुएं वाला जो, जब हम धुआं अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, हमारे लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है. Even loud noise and sound is also a type of pollution.
एक तरह का और पोल्यूशन है, ये जो तेज आवाज है ये भी एक तरह का पोल्यूशन होता है। Thus, there are 4 types of pollution. अब 4 तरह के पोल्यूशन कौन कौन से हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। Some human activities that cause pollution are given below. अब पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा कौन कौन सी होती हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज, वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड्स हाउस टू लिव इन। अभी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसके कारण हमें घर चाहिए रहने के लिए। मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट टू क्लियर द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे कि लैंड मिल सके हाउस बनाने के लिए और रोड्स बनाने के लिए। द ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड्स फॉर मोर एंड मोर फूड। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की ज़रूरत भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चरल लैंड इज लिमिटेड, और जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं जिसपे एग्रीकल्चर होता है वो लिमिटेड हैं। सो केमिकल्स आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज प्रोड्यूस। अब उसी लिमिटेड एग्रीकल्चरल लैंड में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए क्या यूज किया जा रहा है? केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं जिससे कि प्रोडक्शन और ज्यादा। दीज केमिकल्स लोअर द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। और ये जो केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं इससे जो सॉइल की क्वालिटी है वो खराब हो रही है। The running vehicles are emitting a lot of smoke in the air, making it impure to breathe. अब जो इतने सारे व्हीकल्स हो गए हैं, ये व्हीकल्स जो स्मोक छोड़ते हैं, इनसे जो धुआं निकलता है वो एयर में मिक्स हो रहा है और इम्प्योर बना रहा है एयर को सांस लेने के लिए। हम जो सांस लेते हैं वो इम्प्योर एयर हम ब्रीथ इन करते हैं। Look, cutting trees to clear lands. Air pollution. The addition of harmful substances into air is called air pollution. हवा में harmful substances का ऐड होना air pollution कहलाता है। The smoke released from burning fuel from factories and the vehicles is the major source of air pollution. Air pollution का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, जो फ्यूल बर्न करते हैं फैक्ट्रीज में उससे जो धुआं निकलता है वो, और व्हीकल से जो धुआं निकलता है, ये सब एयर पोल्यूशन कॉज करता है। Air pollution is one of the major cause of cough, asthma and burning eyes that you develop. और इनसे क्या क्या होता है? cough होता है, asthma होता है and जो eyes, आंखें जो जलती हैं वो इसी कारण से होता है। Next is the water pollution. Water pollution occurs when harmful substances are discharged into water bodies. जब water bodies में हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो मिलता है, जब वो डलता है उसमें डाला जाता है। पॉइजनस वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इज रिलीज्ड इनटू रिवर्स मेकिंग इट डर्टी एंड पॉइजनस। अब जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ जाके मिलता है? रिवर्स में जाके, और रिवर के वाटर को पॉइजनस बना देता है। लुक, ड्रेनिंग डर्टी वाटर इन अ रिवर, फाइन। और ये है स्मोक coming out from the chimneys of a factory. All dirty water from house drains through the pipes into river. घरों का जितना गंदा पानी है वो सारा जाके रिवर में मिक्स होता है। Domestic waste is also dumped into rivers. जो घरों का वेस्ट है वो भी रिवर में डंप किया जाता है। Some people wash their clothes in rivers and ponds, making water polluted. कुछ लोग क्या करते हैं? रिवर्स और पॉन्ड्स में जाके कपड़े धोते हैं जिससे कि वहां का पानी भी पोल्यूटेड हो जाता है। So these are the causes of water pollution, children. Next comes the land pollution. Land pollution occurs when waste is not disposed of properly. जो कूड़ा है, कूड़ा करकट, जब उसका डिस्पोजल अच्छे से नहीं होता है उस कारण land pollution होता है। But it is thrown in the open to rot. ओपन में फेंका जाता है वेस्ट जिससे कि वो सड़ता है और वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। द मेन पॉल्यूटेंट इज प्लास्टिक। अब जो लैंड पोल्यूशन का मेन पॉल्यूटेंट जो है वो क्या है? प्लास्टिक। ऑल द प्लास्टिक एंड डर्ट दैट पीपल थ्रो ऑन द ग्राउंड पोल्यूट द लैंड। जितना भी गंदा वेस्ट या प्लास्टिक लैंड पे फेंका जाता है वो कॉज करता है लैंड पोल्यूशन, वो लैंड को पोल्यूट करता है, गंदा करता है। Farmers add poisonous chemicals to the soil to kill pests.
अब पेस्ट को मारने के लिए फार्मर्स क्या यूज करते हैं? केमिकल्स यूज करते हैं, पॉइजनस केमिकल्स यूज करते हैं, सॉइल में मिलाते हैं। दीज पॉइजनस केमिकल्स आर हार्मफुल फॉर सॉइल, जो कि सॉइल को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट कम्स द नॉइज पोल्यूशन। लाउड साउंड ऑफ हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स इज कॉल्ड नॉइज। अब ये जितने भी तेज आवाज होती है व्हीकल्स से या एरोप्लेन से, मशीन से, लाउड स्पीकर से, व्हीकल्स के हॉर्न से और बर्निंग क्रैकर्स, जब हम पटाखे चलाते हैं उससे जो नॉइज होता है, उससे जो आवाज होती है, उसे कहा जाता है नॉइज या शोर। इट इज अनप्लेजेंट टू आवर आईज, हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है वो सुनना। सो इट इज अ टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। इसे कहा जाता है नॉइज पोल्यूशन। इट कैन कॉज डैमेज टू आवर ईयर्स। It is advised to listen to music in slow volume. अब ये क्या करता है, ये जो शोर है ये हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है और इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसको लो वॉल्यूम में सुनना चाहिए। फाइन। सी, दिस इज द लैंड पोल्यूशन, ऑल द वेस्ट मटीरियल ऑन द लैंड, एंड दिस इज नॉइज पोल्यूशन बाय एरोप्लेन। जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसकी जो आवाज होती है, तेज आवाज होती है, वो भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या नुकसान होता है? ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अगर हम पोल्यूटेड एयर, हवा को ब्रीद इन कर रहे हैं तो उससे हमें क्या होते हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कॉजेज वाटर डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, डिसेंट्री एंड डायरिया। अब अगर पोल्यूटेड वाटर पिया जाता है, उसके पीने से क्या क्या बीमारियां होती हैं? वाटर डिजीजेस क्या क्या होती हैं? टाइफाइड, डिसेंट्री और डायरिया। पोल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल टू वाटर एनिमल्स लाइक फिश। और अगर पानी गंदा है तो उससे किसको नुकसान पहुंच सकता है? फिशेस को। रॉटिंग ऑफ वेस्ट इन द ओपन कॉज बैड स्मेलिंग इन द एयर। लैंड में अगर वेस्ट मटीरियल पड़ा हुआ है, ऐसा ही खुले में कूड़ा पड़ा हुआ है, तो वो जब सड़ता है उससे एक बैड स्मेल आती है जो कि एयर को पोल्यूट करता है। कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज डिफॉरेस्टेशन दैट लीड्स टू सॉइल इरोजन। अब पेड़ जब कटते हैं तो उससे क्या होता है? सॉइल लूज हो जाती है और कटिंग ऑफ ट्रीज से डिफॉरेस्टेशन भी होता है और सॉइल इरोजन भी होता है। प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। अब इस पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जाए? ऑलवेज वॉक short distances or ride a bicycle instead of driving a car or bike. अगर short distances पे, कम distance में कहीं जाना है तो कार या बाइक से अच्छा है आप या तो पैदल जाएं या बाइसिकल पे जाएं। Always use public transport such as bus, train or a metro train. Public transport का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। Plant more and more saplings of trees along roadsides and on the land which is not being used for a long time. कोई लैंड ऐसा पड़ा हुआ है जो कि बहुत लंबे समय से यूज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ट्रीज के सैपलिंग्स प्लांट करने चाहिए और रोड साइड पे भी ट्रीज के सैपलिंग्स लगाने चाहिए। People should be aware of not washing clothes and utensils in water bodies like rivers, lakes and ponds. लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में कपड़े न धों। Government should treat wastewater before it is drained into a river. रिवर में वेस्ट वाटर ड्रेन करने से पहले उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। A government should take care of this. It is done at a waste water treatment plant. और ये कहाँ पे होता है? waste water treatment plant में। Fine? See, this is the waste water treatment plant. यहाँ से पहले ट्रीट होता है वो वाटर, वेस्ट वाटर, उसके बाद ये रिवर्स में जाता है। Aware people not to throw garbage in water bodies. Water bodies में garbage नहीं फेंकना चाहिए। Plastic is dangerous pollutant. सबसे dangerous pollutant है plastic. Aware people to reduce the use of plastic items like carry bags and disposable crockery. प्लास्टिक की जितने भी disposable crockeries हैं या plastic items हैं, carry bags हैं, इनका कम से कम यूज करना या नहीं यूज करना। Water is precious, so we should not waste it. Aware people how to save water. लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि पानी को कैसे बचाना है, क्योंकि पानी बहुत प्रेशियस है। वाटर इज वेरी प्रेशियस, इसलिए हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए।
Government should allocate industrial areas away from cities and towns. Industrial areas जो हैं वो cities और towns से दूर होने चाहिए. Industries should install tall chimneys with filters, let the smoke go up. अब जो industries में चिमनीज लगी होती हैं वो लंबी लंबी चिमनीज होनी चाहिए जिसमें फिल्टर लगा होना चाहिए जिससे कि स्मोक बाहर जाता है. Aware people to use CNG, compressed natural gas, as fuel in vehicles as it does not pollute air. क्योंकि CNG जो है वो एयर में पोल्यूशन नहीं फैलाता है, इसलिए लोगों को अपने व्हीकल्स में CNG लगवाना चाहिए. People should be aware of using LPG, liquefied petroleum gas, for cooking instead of wood or coal. वुड और कोल की जगह कुकिंग के लिए LPG यूज करना चाहिए. लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी है. गवर्नमेंट शुड टेक एक्शंस ऑन पीपल हु यूज लाउड स्पीकर्स. अब जो लोग लाउड स्पीकर्स का यूज करते हैं उस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना जरूरी है. वी शुड लिसन टू म्यूजिक इन लो वॉल्यूम. और हमें म्यूजिक हमेशा कम वॉल्यूम में, हल्के वॉल्यूम में सुनना चाहिए. व्हाट इज वेस्ट? अब वेस्ट क्या होता है? A substance which is of no value in normal use is called a waste. कोई भी substance जिसकी normal use में कोई value नहीं है वो waste होता है. Waste can be categorized into two types. अब waste दो तरह से categorize किया गया है, biodegradable and non-biodegradable waste. Biodegradable waste. Biodegradable waste can be broken down into simpler form by decomposers like some bacteria. अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो और सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन उनका किया जा सकता है कुछ डिकम्पोजर्स के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया. दिस सिंपलर फॉर्म गेट्स मिक्स्ड विद सॉइल एंड इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. अब ये जो सिंपलर फॉर्म में जब ये ब्रेकडाउन होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, ये किससे मिक्स होते हैं? सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और फिर प्लांट्स द्वारा यूज किए जाते हैं अपने ग्रोथ के लिए. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन वेस्ट इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन. और इस प्रोसेस को जिसमें कि ये वेस्ट जो है ये ब्रेक डाउन होता है इन सिंपलर फॉर्म में, उसे कहा जाता है डीकम्पोजिशन. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्लांट्स और एनिमल्स से. किचन वेस्ट, animal dung and agricultural waste all are of biodegradable waste. ये सभी क्या है? biodegradable waste. They do not pollute nature. इनसे नेचर को कोई हार्म नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता. Some bacteria and fungi decompose them for the use of plants. और प्लांट्स के यूज के लिए कुछ बैक्टीरिया और फंगाई डिकम्पोज होते हैं, अपने खुद को डिकम्पोज करते हैं. Next comes the non-biodegradable waste. Non-biodegradable waste cannot be broken down into simpler form. Non-biodegradable waste को simpler form में नहीं break down किया जा सकता. It remains in the soil for a long time and thus pollute our environment. ये soil में बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं और हमारे environment को pollute करते हैं. Plastics, rubber and glass all are non-biodegradable waste. ये सभी क्या हैं? प्लास्टिक, रबर और ग्लास non-biodegradable waste हैं. इन्हें आप जमीन में दबा दीजिए, सालों साल बाद भी वैसे ही रहते हैं. ओके? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. Biodegradable and non-biodegradable waste should be collected in separate bins. अब ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, दोनों तरह के वेस्ट जो हैं ये अलग अलग बिन्स में होने चाहिए. Biodegradable waste should be decomposed to make manure. Biodegradable waste जो होते हैं उनको decompose करके manure बना लेना चाहिए. The manure is added to the soil for the use of plants. और यही manure soil में add किया जाता है plants के use के लिए. Non-biodegradable waste can be recycled to make new objects. और जो non-biodegradable waste है उनको recycle करके नए objects बनाए जा सकते हैं. Used plastic, glass and metallic items should be sold to kabadiwalas for recycling.
जितना भी हमारे घर में प्लास्टिक, ग्लास और मेटालिक आइटम होता है जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, उसे किसे देना चाहिए? कबाड़ी वाले जो आते हैं उनको दे देना चाहिए, जिससे कि वो रिसाइकलिंग के लिए जा सके। फाइन चिल्ड्रन, नाउ कम्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिफ्यूज। To save our environment from pollution, we should follow these 4 R's. ये 4 R's फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकें। So let's read about them. Reduce. Reduce refers to minimize the amount of waste. Amount of waste को कम करना, minimize करना. For example, we should write on both sides of paper to reduce paper wastage. पेपर की वेस्टेज कम करने के लिए हमें पेपर के दोनों साइड पे लिखना चाहिए। Similarly, we should use carry bags made of cloth instead of plastic. प्लास्टिक के कैरी बैग्स नहीं यूज करके हमें कपड़ों से बने हुए कैरी बैग्स यूज करने चाहिए। Reduce the use of disposable items like plates, cups, bottles and glasses in parties. Parties में ये जो disposable items हैं इनको reduce कर देना चाहिए। Next comes reuse. Reuse refers to reuse things instead of making them a waste. Reuse का मतलब होता है उस सब्सटेंस को, किसी चीज को दोबारा से यूज करना और उसे वेस्ट मटेरियल नहीं बनाना। For example, give old books and clothes to the needy for their use. अब आपकी जो पुरानी बुक्स होती हैं या पुराने कपड़े होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको वेस्ट कह देते हैं कि ये तो वेस्ट है हमारे लिए, एंड वो वेस्ट मटेरियल बना के उसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए, वो जो ओल्ड बुक्स हैं और ओल्ड क्लोथ्स हैं उन्हें किसी को दे देना चाहिए जिससे कि वो फिर से यूज कर ले उसको। ओल्ड बुक्स कैन बी डोनेटेड टू लाइब्रेरीज। जो पुरानी बुक्स हैं उन्हें लाइब्रेरीज को डोनेट कर देना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट कम्स द रिसाइकिल। Recycle refers to the action of using again and again. किसी चीज को बार बार यूज करना, उसे कहा जाता है रिसाइकल। Used plastic items are recycled in factories to make new ones. जो पुराने प्लास्टिक आइटम्स हैं उन्हें रिसाइकिल करके नए बना दिए जाते हैं। ओके। पेपर इज ऑल्सो रिसाइकल। पेपर को भी रिसाइकिल किया जाता है। Newspapers and rough papers are recycled to make fresh paper for writing and printing. न्यूज़पेपर्स, रफ पेपर्स जितने भी होते हैं उन्हें भी रिसाइकिल किया जाता है जिससे कि फ्रेश पेपर बनाए जा सके फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग। ओके चिल्ड्रन, द लास्ट वन इज रिफ्यूज। रिफ्यूज रेफर्स टू से नो टू सर्टेन मटेरियल्स। रिफ्यूज का मतलब नो कहना कुछ मटेरियल्स को। देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ प्लास्टिक्स व्हिच द गवर्नमेंट हैज बैन। एक पर्टिकुलर टाइप का प्लास्टिक है जिससे कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। डू नॉट एक्सेप्ट थिंग्स मेड ऑफ दिस प्लास्टिक। और ये जो प्लास्टिक जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया है, इसकी कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करनी। इससे बनी हुई, इस प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज न यूज करना। सो चिल्ड्रन, दिस इज द सिंबल ऑफ रिसाइकल। ओके, रिसाइकल का ये सिंबल होता है। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स रैप अप। All living and non-living things in our surroundings make our environment. हमारा environment बनाते हैं। Addition of harmful substances into our environment is called environmental pollution. Harmful substances in the environment are called pollutants. Smoke is the main pollutant of air pollution. Draining sewage and wastewater from factories into rivers and other water bodies cause water pollution. Plastic is the main pollutant of land pollution. Biodegradable waste is decomposed for the use of plants for their growth. Non-biodegradable waste cannot be decomposed and so it pollutes the land. Reduce, reuse, recycle and refuse are 4 R's that we should follow to keep the environment clean. Fine children? Understood the chapter? Now, check your progress. Tick the correct option. Industrial areas should be in the middle of a city or town, away from the city, very close to a city or town. It should be away from the
city. Which of these is an air pollutant? Smoke, pesticide, fertilizer. It's the smoke. Which of these is a biodegradable waste? Glass, paper, plastic. Paper is a biodegradable waste. Which of these cannot be decomposed by decomposers? Rubber, peels of fruits, wood. Rubber. Which of these is a source of noise pollution? Noise pollution का source कौन सा है इनमें से? Flute, horn of vehicle, piano. It's the horn of vehicle. Next comes the fill-ups. Fill in the blanks with the appropriate words given in brackets. The presence of harmful substances into our environment is termed as pollution or pollutant. The presence of harmful substance in our environment is termed as pollution. Write down pollution here. Release of smoke into air causes dash pollution. Water or air? It's the air pollution. Adding fertilizers to the soil causes dash pollution. Land, air. It causes the land pollution. We must use dash to go short distances. Bicycles, cars. We must use bicycles to go short distances. Okay, children? Dash is a waterborne disease. Dysentery, malaria. Dysentery is the waterborne disease. Okay, children? Now, state whether true or false. Human beings are not a part of the environment. It's false. Washing clothes into a river helps kill germs. No, not at all. False. Burning of fuels pollutes our environment. Yes, true. Our environment includes air, water, land, and living things. Very true. Recycle helps us keep the environment clean. Yes, true. Okay? So children, this was all in this chapter, and this chapter has given a great knowledge how to prevent the different types of pollution and make our environment clean. So thanks for watching the video, children. We'll meet soon once again with something new and something more interesting. Till then, stay blessed, be happy. Bye.